जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्णः ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरणः भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहतः दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जितः ज्ञान पर निंदा नह श्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणुकः खट लक्षण पूर्णं पुरखः नानक नाम साध सवजन खट लक्षण पूर्णं पुरखः नानक नाम साध सवजन। सतगुर शब्द कमाए जैन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। सतगुर शब्द कमाए जैना जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी जुड़ बैठी परम सन्मान ते सत्कारयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत महान तत्वेता महापुरुष आत्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वाले महापुरुष जिन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं मुख रखदिआं गुरमत समागम समूह मलेरकोटला दीआं संगतां ने इलाका निवासियों ने रखे हैं। हर साल ये गुरमत समागम हुंदे हैं। महापुरुष संत बाबा बलजिंदर सिंह जी हाजरियां भरते हैं। विदेश गए हैं, उन्होंने दासां की ड्यूटी लाई है कि आप जी संगत के दर्शन करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र बाणी विच बारंबार साधुआं दा रब दे प्यारिआं दा संत जनां दा वर्णन आउंदा है। दास तो पहला गुरमुख प्यारे बचन सरवण करवा रहे सन कि संत ते राम विच कोई भेद नहीं, दोनों ही एक रूप हो जाते। ये गल असी कह के सरवण कर रहे हाँ सुखाली है ना भी संत ते राम दोवे एक मिक हो गए, दोनों च कोई भेद नहीं। पर एक संत नूं उस राम च अभेद होण लई जिहड़ी साधना साधनी पई है, खेड तां ओह है कठिन करड़ी घालना। कह देना ते सुन लेना तो सुखाला हुंदा, पर वो साधना करके संत किवें राम विच एक मिक होए ने, अभेद होए ने,
ਉਹ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਗਰ ਆਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਲਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਢਿੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਏ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਬਕਾਇਦਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਕਵੀ ਰੱਖੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂ 300, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ 300 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ ਪਰ 200 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਫਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫਰੀ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ। ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਚੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਪਰਚੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਥਿਆ ਲਿਖੀ, ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਟੁਰੇ ਜਾਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ,
सतगुरां ने। नारद जी टुरे जाण, नारायण नारायण हत्थ विच बेण हुंदी सी उन्हां दे, ओह वजाउणा नाले रसना तो नारायण नारायण दा जाप जपना। टुरे जांदियां एक दिन निगाह पई भी एक बड़ा विशाल काया वाला शरीर मनुख दा ਉਹਦੇ नारद जी ने वेखिਆ भी बड़ी उच्ची लंबी कद काठी शरीर बड़ा बलवान कि नारद जी खलो के सिर उतां करके ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ रहे। मन च ख्याल आया भी परमेश्वर ने कितना वड्डा मनुख पैदा किया भी इहनूं नमस्कार करिए प्रणाम करिए। नारद जी प्रणाम करन लगे तो वह अगों ਉਹਦੇ ਵੇਖਿਆ भी एडा वड्डा महापुरुष है, नारद मुनि है, ऋषि है, भी मैं एक सधारण जिहा बंदा मैनू ये प्रणाम करे गल चंगी नहीं। उन्हें आख्या महाराज मैनू क्यों मत्था टेकन लगे? कहन लगे भी तू वड्डा बड़ा है, तेरा शरीर इन्ना वड्डा है, आकार इन्ना वड्डा है, मैं तेरी इस वड्डेपन नूं वेख के नमस्कार पिया करन। वो कहन लगा महाराज मैं किन्ना को वड्डा, मैं तो कुछ भी नहीं। जे तुसी वड्डे दी गल करो इस धरती ते वड्डा तां समुंदर है, समुंदर तो वड्डी किहड़ी शै है भला? जिस समुंदर विच मेरे वर्गे कई समा जाण, भी जे प्रणाम ही करनी है जाके ते समुंदर नूं करो। नारद जी कहन लगे भी गल तां तेरी ये भी सही। गए समुंदर दे कंढे ते जाके खलो के प्रणाम करन लगे ते समुंदर दा देवता प्रगट हो गया, वरुण देव। कहन लगा महाराज मैनू क्यों नमस्कार कर दे? कहते भी तू बड़ा वड्डा है, तेरा आकार बड़ा वड्डा है, तू मेवदा नहीं धरती ते, भी तां तेरे वड्डेपन नूं वेख के नमस्कार करन लगा भी तू वड्डा है। समुंदर कहन लगा नारद जी मैं काहदा खेसवा वड्डा, मेरे नालों वड्डा तां अगस्त मुनि है, अगस्त ऋषि, ਜਿਹੜਾ मैनू 2.5 चूड़ियां च पी गया, फिर वड्डा तां वो होया। समुंदर दा ये पुराणक कथा है कि अगस्त मुनि जी होए, वो कुछ ऋषि समुंदर कंढे बैठे तप करते ने, छल मारी कई साधुआं नूं रोड़ के लै गए। अगस्त मुनि नूं रोस आया भी तैनूं लाज नहीं आउंदी भी तू रब दे प्यारिआं नूं रोड़ के लै गया। उन्हें गुस्से विच आया, आकार एडा वड्डा कीता, 2.5 चूड़ियां च पी गया। कहन लगा भी मेरे नालों वड्डा तां अगस्त मुनि है, जिहड़ा मैनू 2.5 चूड़ियां च पी गया। जे मत्था ही टेकना है ओनू टेको जाके। नारद जी अगस्त मुनि वाल आए ते आके अगस्त मुनि नूं कहंदे महाराज प्रणाम। वो कहंदे भी क्यों? कहंदे भी तुसी इन्ने वड्डे हो भी तुसी 2.5 चूड़ियां च समुंदर पी गए, तां तुहानू प्रणाम। वो कहंदा मैं काहदा वड्डा, वड्डा तां ब्रह्मा जी ने मेरे वर्गे कई बनाए ने। ब्रह्मा वो मेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, मेरे वर्गे खबरे ਉਹਨੇ किन्ने क बनाए ने, वड्डा तां ਉਹ होया। फिर भी जो जाके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नमस्कार, ਹੁਣ नारद जी ब्रह्मा जी ਦੇ पुत्र ने। नारद जी कहते ਉਹ ਤਾਂ मेरे पिता ने। कहते हाँ भी पिता ने, पर तू ਉਹਨਾਂ ਦੀ महिमा नहीं जानी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ मेरे वर्गे कई बनाए, जाके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रणाम कर। ब्रह्मा जी दे कोल गए प्रणाम करन ते ब्रह्मा जी अगों कहन लगे भी मैनू किस गल्ले प्रणाम करदा? नारद कहंदा जी तुसी वड्डे हो, बड़े बड़े वड्डे अगस्त मुनि वर्गे सिरजे बनाए ने तुसी। वो कहन लगे भी मैं तां कल्ला बनाउना ही आ, ते एक वो भी शक्ति है जिहड़ी पालदी है सारिआं नूं। मेरे नालों वड्डे हो ने भगवान विष्णु जी। उन्हां दी नाभि दे विचों कमल दा फुੱਲ पैदा होया, ਉਹਦੇ चों मैं बनिया सा। नाभ कमल थे ब्रह्मा उपजे, भी वो मेरे तो भी वड्डे होए। फिर भी जे प्रणाम करनी है तो जाके भगवान विष्णु नूं प्रणाम करो। नारद जी विष्णु जी कोल हाजिर होए। महाराज प्रणाम। वो कहंदे किस गल्ले? कहंदे तुसी सब तो वड्डे हो। वो कहंदे मैं काहदों वड्डा? भी मैं तां केवल पालदा ही हाँ। मेरे पालदियां पालदियां एक शक्ति ऐसी भी है जिहड़ी सारिआं नूं लै करदी है, खत्म करदी है, फिर वो वड्डी होई ना।
कहते जी वो कौन? कहते वो शिव जी भगवान ने। विष्णु जी शिव जी की आराधना करते, ब्रह्मा जी विष्णु की आराधना करते। ये तिन्ने देवते एक दूजे के पूरक ने। वैसे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨੇ। शिव जी कोल गए, शिव जी कहन लगे भी तू एडा वड्डा ऋषि, मैनू किहड़ी गल्ले प्रणाम करना? कहते जी तुसीं वड्डे हो। कहते भी साडे सारियां तो वड्डा अकाल पुरख है, जिन्हें मेरे वर्गे कई शिव जी पैदा किए, कई ब्रह्मा पैदा किए, कई विष्णु पैदा किए। काल पुरख की देह मोह, कोटक बिशन महेश, कलगीधर जी के बचन ने। काल पुरख की देह मोह, कोटक बिशन महेश। ओदी देह विच एक करोम च करोड़ा विष्णु, करोड़ा शिव जी, करोड़ा ही ब्रह्मे हैं। फिर एक जगह ते लिखते एक शिव गए, एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, तो कितने ही होए। कहते अच्छा अकाल पुरख जी दे संबोधन करके, महाराज अकाल पुरख जी नमस्कार। अकाल पुरख जी कहते भी किस गल? कहते जी तुसीं सब तो वड्डे, सब तो उच्चे हो। कहते नारद नहीं, मेरे तो भी वड्डे हैं। नारद जी बड़े हैरान, महाराज रब तो वड्डा केड़ा हो गया, परमेश्वर तो वड्डा केड़ा हो गया? कहते नहीं मेरे तो भी वड्डे ने। महाराज कौन? कहते जेड़े मेरे भगत ते मेरे संत ने, वो मेरे तो भी वड्डे ने। मेरी बन्नी नूं वो छुड़ा लेंदे, उन्हां दे बन्ने नूं मैं नहीं छुड़ा सकदा। आखो सतनाम। कहते जे प्रणाम करनी है तां मेरे संत भगतां नूं जाके प्रणाम करो, नमस्कार करो। जदों संत भगतां नूं प्रणाम करदे हो तां मेरी खुशी वरतदी है, मेरी किरपा वरतदी है। मैनूं खुशी हुंदी जदों मेरे भगतां दा प्रताप संसार च उजागर हुंदा। गुरु अर्जन साहब पंजवें पातशाह माता गंगा जी नूं पुत्र दी दात दे सकदे सी, समर्थ देव ने, आप परमेश्वर ने। ये माता जी मंग करते हैं भी मैनू पुत्र दी दात दिओ, ते वो क्यों कहते भी बाबा बुढ़ा साहब जी कोल जाओ? क्योंकि महाराज जी अपने भगतां दी शोभा, अपने भगतां दा प्रताप संसार च उजागर करके खुश हुंदे, अपने भगतां दी वडियाई संसार च उजागर करके खुश हुंदे। नारद जी कहन लगे महाराज तुहाडे संत जनां नूं, भगत जनां नूं मेरी प्रणाम है। हुण वो संत परमेश्वर रूप होण वास्ते जिहड़ी साधना करदे है, संत किस नूं कहंदे ने? जिस अंदर सत दा भाव रह जाए ते असत विलय हो जाए, अभाव हो जाए असत दा। सत रह जाए, असत खत्म हो जाए, उन्होंने संत कहंदे। हुण सत ते असत दा निर्णय, सत की है ते असत की है? असत आ सब कुछ, आ शरीर असत है, इहदे नाल जुड़ियां जिन्नियां भी वस्तुआं ने ये सब असत है। हनेरे विच बाहर किते थोड़ी थोड़ी लो होवे, रस्सी पई होवे, रस्सी विच नज़र आउण लग पिया सप। वेखण वाला कहंदा वो सप पिया, दूजा कहंदा नहीं मैनू इदां लगदा भी जिवें कोई फुल्लां दी माला डिग्गी पई। तीजा कहंदा नहीं मैनू तां पानी दी लकीर जी लगदी। ते चौथा कहंदा जमीन च दराड़ पई होई, इक्को रस्सी विच कई कुछ दिसण लग पिया। क्यों? क्योंकि अविद्या आ गई, अज्ञान आ गया। जे उत्थे चानना होवे, रस्सी दा यथार्थ स्वरूप दिस जाए ते बाकी चारे चीज़ां खत्म हो गई। ना उत्थे फुल्लां दी माला, ना उत्थे जमीन दी दराड़, ना उत्थे सप, पता लग गया भी रस्सी है। सत दे विच कल्पना कर लई असीं, है तां रस्सी रूपी सत परमात्मा, ਉਹਦੇ 'ਚ कल्पना कर ली भी मैं शरीर हाँ, ये मेरा प्यो है, ये भरा है,
आ मेरी जमीन है, आ जायदाद है, आ कुछ है, बहुत कुछ कल्पना कर ली। एक संत जदों सत विच जुड़ के अभेद हुंदा है, जदों उहदे अंदर ज्ञान दा चानना हुंदा है, तां सब तो पहला ये सब कुछ खत्म हो जाता है। वो केवल सत नूं वेखदा है और सत च ही एक बिक हो जाता है। एक सत तुहाडे सारिਆਂ दे अंदर है, एक सत मेरे अंदर है। शरीर दे भेदां करके असीं सारे वक्खो वखरे बैठे हैं, पर आत्म रूप विच सत रूप दे विच वेखीए ते सारिਆਂ विच चेतना इक्को परमात्मा दी इक्को जिही है। संत जन उस नूं वेखदे ने, चेतन चेतन नूं वेखदा, सत सत नूं वेखदा। जदों चेतन चेतन नूं वेखदा ते फिर वो कहंदे ने सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। एक संत दी बिरती है। और एक संत ऐसी सत दी आराधना करदिआं सत विच भेद हो जाता। सत संत और भगत, संत तां संत सत विच भेद हो गया। जिहड़ा भगत है उस सत नूं वखरा जान के अपने आप नूं उहदे तों निरालम जान के उहदी भगती दे रंग विच प्रेम विच मस्त हुंदा। वो प्रभु भगती दा रंग माणदा, जां इस तरह कह लो कि खुद पार ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी भगती दा रंग माणना सी, उन्हें आप ही भगत रूप हो के संसार विच जन्म ले लिया। भगत रूप हो के आया ते अपनी भगती दा रस आप ही माणन लग पिया। हुण जिहड़ी ये गल कही सी ना नारद नूं कि मेरी बन्नी नूं ये छुड़ा लैंदे है, इन्हां दा बन्निया मैं अपना आप नहीं छुड़ा सकदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज भगत रविदास जी का जिक्र करते हैं, जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। इत्थे वो कहंदे महाराज जे तुसी मैनू मोह दीआं रस्सियां च बन्निया ते मैं तुहानू प्रेम दीआं रस्सियां च बन्ह लिया। तुसी अपने छुटण दा यतन करो, किवें मुक्त होवोगे? मैं तां तुहाडी आराधना करके छुट जावांगा, मुक्त हो जावांगा। एक होर साखी मेरी सिमरती विच आउंदी इसे विषय ते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच 15 महापुरुषां भगतां की बाणी दर्ज है। उन्हां विचों एक महापुरुष महात्मा होए भगत सूरदास जी। सूरदास जी महाराज जी की केवल इक्को पंक्ति राग सारंग विच महाराज जी ने दर्ज की, छाड़ मन हर विमुखन को संग। महापुरुष दसदे भी जदों भगत सूरदास जी अपनी बाणी लिखाण आए ना गुरु रामसर सरोवर के कंढे गुरु अर्जन साहब पास, कहते भगत आप आए महाराज जी को बाणी लिखाण। सूरदास जी ने जदों ये पंक्ति कही, छाड़ मन हर विमुखन को संग, ये कहते उन्हों की सुरत जुड़ गई, ध्यान एकाग्र हो गया ते समाधि च चले गए। उन्होंने जो होर अगे कहना सी वो फिर महल्ले पंजवें दे सरलेख विच गुरु अर्जन साहब जी ने लिखे। भगत सूरदास जी महाराज कृष्ण भगती विच पहलों तत्पर सन, क्योंकि निराकार तक जाण लई पहला साकार तो चलना पैंदा। सिद्धा असीं निराकार विच नहीं जा सकते, असीं भी साकार रूप विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार करते हैं। जे सिद्धा अकाल पुरख दे स्वरूप का ध्यान धारीए, औखा काम है ना, जाना उत्थे ही है, पर साकार तो ही निराकार वाल जाया जाना। 10 गुरुआं का स्वरूप जान के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नमस्कार करनी, प्रगट गुरां की देह जान के सतगुरां दा अदब सत्कार करते हैं ना, ये साकार तो निराकार। इदां जिहड़े महापुरुष भगत सन ये पहला साकार की भगती करते रहे, चाहे वह भगत नामदेव जी महाराज जी ने, भगत जयदेव जी ने, ये कृष्ण जी की भगती करते रहे। साकार तो निराकार वाल गए, फिर जदों निराकार विच गए उत्थे जाके भेद हो गए। भगत सूरदास जी हिंदुस्तान के जितने कवि होए ने, उन्हां कवियां विचों सब तो उत्तम पदवी हिंदुस्तान के कवियां चों सूरदास जी नूं पुरातन महापुरुष दिंदे। वो कहंदे सूर सूर सम। सूरदास जी सूरज के समान ने।
बाकी कवियां नूं होर उपाधियां दित्तियां। उन्हां दी एक पुस्तक है जिन्हों कहते हैं सूर रचनावली। उन्हां च दोहरे ने भगत सूरदास जी दे बड़े सुंदर दोहावली है। कीर्तन बड़ा सोहना करया करदे भगत सूरदास जी। नेत्रां तो अन्ने सन, वेख नहीं सन सकते। एकांत विच वन च एक कुटिया बनाई ते उत्थे रहिंदे, उत्थे बैठे रब रब करदे। जे किसे दे मन च जग्यासा होनी कि घर विच कीर्तन कराउणा, तां भगत सूरदास जी नूं जाके नाल लै आउणा। उन्हां ने कीर्तन करना ते वापस उन्हां नूं छड्ड आउणा। एक दिन एक जग्यासू दे मन च इच्छा हुई कि रात दा समागम रखीए, घर विच कीर्तन होवे ते भगत सूरदास जी कीर्तन कर जाण। भगत जी नूं जाके बेनती कीती, महाराज जी कि साडे घर आप जी कीर्तन करो। भगत जी कहण लगे भी मेरी इक्को शर्त हुंदी है भी लै जाओ ते छड्ड जाओ। वो कहंदे जी लै भी जावांगे ते छड्ड भी जावांगे। भगत जी नूं शाम दे वेले वो जाके लै आए। रात नूं कीर्तन होया। कीर्तन करदिआं कुछ सुरत इहो जी जुड़ी, समा काफ़ी हो गया, अद्धी को रात दा वेला हो गया। ਜਿਹੜੇ परिवार वाले सन वो संगत नूं संभालण लग गए। संगत आई है, उन्हां नूं जल पानी छकाणा, भोजन छकाणा। उन्हां नूं इह भुल गया भी भगत जी नूं सूरदास जी नूं वापस भी छड्ड के आउणा। उन्हां वल्लों ध्यान हट गया, ध्यान जुड़ गया। जिहड़े घर च प्रेमी आए, श्रद्धालु आए, उन्हां दी सेवा च जुड़ गए। भगत जी ने भी सोचिया भी चलो क्यों परेशान करना इन्हां नूं। हत्थ विच छोटी जी एक लकटी सी टोहणी, सोटी डंगडोरी कह दिंदे आ उहनूं। वो टोंदिआं टोंदिआं कहंदे चलो आए सी जिस रस्तियों थोड़ा बहुता सिमरती विच हो ही जांदा। जिन्हां दे नेत्र नहीं हुंदे परमेश्वर ने उन्हां नूं इह गुण दित्ता हुंदा, उन्हां नूं रस्ता चेते रहिंदा। वो चल पए, कल्ले ही नगर तो बाहर गए जिधर उन्हां दी कुटिया सी, जंगल वाले पासे। अद्धी को रात दा वेला होना ते कहंदे जाण हरे कृष्ण हरे राम। ये जाप जपदे सी भगत सूरदास। हरे कृष्ण हरे राम जपदिआं जपदिआं टुरे जाण। एक खूह आया, खूह दे आले दुआले वाड़ नहीं सी लगी। बिल्कुल 2-3 कदम 4 कदम होर पुटदे ते भगत जी उस खूह ते डिग सकदे सी। हालांकि हत्थ च सोटी फड़ी है। हरे कृष्ण हरे राम कहंदे बिल्कुल जदों नेड़े आ गए, उधरों भगवान ने वेख्या भी मेरा भगत किते खूह च ना डिग पए, मेरे प्रेम रंग च रंगिया होया जा रहा है। भगवान जी प्रगट होए एक बालक का रूप धारण करके, आके भगत सूरदास जी के हथ च जिहड़ी सोटी फड़ी सी उहदे अगले सिरे तो फड़ लिया। कहंदे महाराज रुको, अगे खूह है। सोटी तो पकड़ के साइड ते पासे नूं लै गए। एक सिरा भगवान जी के हथ विच, एक सिरा भगत सूरदास जी के हथ विच सोटी का। ते सूरदास जी महाराज जी पुछण लगे महाराज तुसी कौन? वो कहंदे मैं एक बालक हाँ। भगत जी एकदम थोड़े जे अंदरले नेत्रां नाल वेखण लगे। जड़ियां अखां महाराज जी कहंदे सियाखड़ियां बयान, जिन्नी डसंदो मां पिरी। वो अखां आ अखां नहीं हन, वो सोझी दे सुमत दे नेत्र हुंदे है, जिहदे च ज्ञान रूपी सुरमा पिया होवे ते अज्ञान दा हनेरा बिनसिया होवे, वो नेत्र। कहंदे भी रात दा समा, अद्धी रात भी इस वेले एक बच्चे दा इत्थे जंगल च की काम? बियाबान है। एकदम पुछया चौंक के नाल तुहाडे कौन है? कहंदे नहीं मैं इकल्ला। जदों कहा ना भी मैं इकल्ला हाँ,
ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਗੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੇ 'ਚ ਚਾੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਜੱਫਾ ਚਾੜ ਲੈਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਈ ਜਾਣ, ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਰ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਏ ਉਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਦਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਸਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਸਿੱਧੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ, ਸੜਦਾ ਕਿਤੇ? ਕੱਪੜਾ ਸੜਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਲਾਊ ਕਿ ਨਾ ਲਾਊ? ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਖੇਡ। ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਅਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਦਾ, ਸੰਘਾਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੀਵ, ਈਸ਼ਵਰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਜੀਵ, ਈਸ਼ਵਰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ। ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਰਤਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਕੁੰਗਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਟੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਾਹਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਫੜਨ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਬਲ
कमजोर ते नेत्रां तो विहूणा जान के मेरे हथ चों अपना हथ छुड़ा के हस रहे हो मेरी कमजोरी ते, मेरी निर्बलताई ते। मैनू निर्बल कमजोर जान के ते मेरे हथ चों अपना हथ छुड़ा के दूर खलो के मेरी उस कमजोरी ते निर्बलताई ते हस रहे हो। उन्होंने एक गल बड़ी दावे नाल कही, कहंदे इन्हां हत्थां विचों तां अपना आप छुड़ा लिया है, पर जे तुसी मेरे मन विचों अपना आप छुड़ा के विखाओ ते मैं मन्नांगा तुसी मर्द। मन ते बिसर के देख तो मर्द बखानो तो है। मेरे इस मन विचों, मेरे हिरदे विचों अपना आप छुड़ा के विखाओ ते मैं मन्ना तुसी मर्द हो। ये ओही खेड सी जिहड़ी प्रेम दी डोर विच महाराज भगत रविदास जी कहंदे हैं ना भी मैं बन्निया होया, उस प्रेम दी डोर विचों तुसी अपना आप नहीं छुड़ा सकते। ये अवस्था एक महात्मा दी हो सकती है, एक संत दी हो सकती, एक भगत दी हो सकती। और एक महात्मा संत साधना करदा करदा करड़ी तपस्या, उहदी ये करड़ी तपस्या की है कि वह अपने शरीर नूं अपना स्वरूप करके नहीं मनदा कि मैं शरीर हाँ। ये शरीर जिस दे आश्रित है उहनूं मनदा है, उहनूं लै चिंतन कहंदे आ। सब तो पहला आ बाहरला सानू कोई पूछे भी तेरा नां की है, असीं झट कहने फलाना सो, ते साडा ध्यान कित्थे जांदा? साडे अपने शरीर ते। अपने आप नूं वेखना होवे ते सामने शीशे ते जाके घंटियां बधी भी वेखने, ये साडा स्वरूप है। पर यह साडा स्वरूप नहीं है। जे साडा स्वरूप हुंदा ते साडे जन्म तो पहला भी होना चाहिए सी ते मरण तो बाद भी रहना चाहिए सी। ये जन्म तो पहला नहीं सी, मरण तो बाद रहना नहीं, ते फिर ये साडा स्वरूप किवें होया? इहनूं कहंदे ने अन्नमय कोश। जिहड़ा अन्न तो मां प्यो ने अन्न खाधा, माता दी रकत और पिता दे बिंद तो यह शरीर बनिया, और अन्न खा के वधिया फुलिया, अन्न दे आसरे चल रहा। जिहड़ा अन्न तो बनया अन्न दे आसरे चल रहा, वो साडा स्वरूप किवें होया? ये तां बाहरला अन्नमय कोश है, नाले जड़। कुछ तां है इहदे अंदर, जदों इहदे चों निकलदा ते ढेरी जिहा हो के डिग पैंदा, चेतना निकलदी। फिर साडा ध्यान जांदा इस अन्नमय कोश नूं चलाण वाला दूसरा कोश है प्राणमय कोश, भी ये प्राणा दे आसरे चलदा है। दूसरा कोश प्राणमय कोश। महापुरुष अन्नमय कोश की पहला साधना करते, पहला इस शरीर नूं साध दे। शरीर की साधना की है भी पहला खाण ते संजम, सौण ते संजम, मर्यादा हुंदी, खाण दी मर्यादा, सौण दी मर्यादा, इस शरीर की गल इहनूं साधना अन्नमय कोश नूं। असीं तां हाले पहला ही नहीं साधिया, 4 होर पए अगे, 5 कोश हुंदे है, असीं ये पहला ही नहीं साधिया ते अगे प्राणमय कोश, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय कोश, फिर उस तो परे आत्मा। असीं तां हाले जे कोई वधिया पदार्थ वेख लीए तां साडे मन दे विच इच्छा होण लग पैंदी, खा लीए, कोई चंगी चीज़ वेख लीए तां भी ये मेरी होनी चाहिए है। पहली साधना ही नहीं हुई इस शरीर की। रब दे प्यारे महात्मा सानू साधना करके पहलों ये तरीका दसदे है कि भाई पहला इस तन की साधना करो, अमृत वेले उठो, ये तन की साधना है। अमृत वेले उठना, इशनान पान करना, जेड़े वेले दुनिया नू नींद प्यारी हुंदी है, गुरमुख अमृत वेले उठ के इशनान पान करके तैयार बर तैयार होके बहिंदे, साधना ही है ना। ये शरीर की साधना। फिर चौंकड़ा ला के नितनेम करना, फिर सेवा करनी, गुरु के लंगरां में जाके भांडे मांजने, जोड़े झाड़ने, झाड़ू फेरना, ये तन की साधना। फिर दूसरा कोश है प्राण, प्राणा की साधना। प्राणा की साधना वाहिगुरु वाहिगुरु स्वासां नाल जपना। फिर इस तो अगे मन दे विच फिर वेखना भी मन की है। मन किस नूं कहंदे ने? मन कोई साडे शरीर दा अंग नहीं है,
भी जिवें अखां ने हार्ड है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मेरा दिल नहीं करता, हालांकि दिल ने की करना, दिल का काम है पंप करना, वो तो एक पुरजा है शरीर का, वो तो पार्ट है, ਉਹਦਾ काम है खून ਨੂੰ पंप करना। दिल ने की कहना, दिल नहीं मन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेतना। मन किहनूं ਕਹਿੰਦੇ ਆ? मन कोई शरीर का पार्ट नहीं है, ये शरीर बिनसण तो बाद भी रहिंदा मन, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सूखम शरीर ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ मन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। मन ਕਈ ਜਨਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ मन है ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ मन ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। और ये मन ही है जिहड़ा हर जून तब्दील करता सूक्ष्म शरीर विच नाल हो के, आ शरीर छड्ड के अगला शरीर, फिर तीसरा चौथा, मन उही रहना हर शरीर विच। मन किस नूं कहंदे ने? मन कहंदे ने फुरनिया कफुरनिया नूं, संकल्प विकल्पां नूं। जिहड़ा साधु है वो साधना करदे अपने फुरने खत्म कर दिंदा, ਉਹਦੇ अंदर कोई फुरना नहीं रहिंदा, कोई जदों संकल्प विकल्प ही खत्म हो गए फिर वो जन्म मरण तो मुक्त हो जाता। जदों तक संकल्प विकल्प नहीं बिनसदा उदों तक जन्म मरण भी नहीं मुकदा, उदों तक जन्म मरण की यात्रा चली जाती। तो तीसरा कोश है मनोमय कोश। हुण मन करदा फुरना पर निर्णय नहीं कर पाउंदा। निर्णय कौन करदा? निर्णय करदी है साडी बुद्धि, उहनूं कहंदे ने विज्ञानमय कोश। मन ने फुरने कर दिते दो, मन ने आख्या भी चलो कथा ते चलीए, एक मन कहंदा रहन दिंदे आ, दो फुरने हो गए, मन ने अपना काम कर लिया फुरने। हुण डिसाइड किहने करना भी जाना कथा ते कि नहीं जाना, वो करना साडी बुद्धि ने, उहनूं कहंदे ने विज्ञानमय कोश, वो है साडी बुद्धि। साधक चिंतन करदियां करदियां फिर उस बुद्धि तक चले जांदे। वो कहते भी ये बुद्धि दे विच भी एक भास है, जिहड़ा पिछों कोई चेतना इहनूं प्रकाश रही है। आपां कदे नहीं कहते मैं बुद्धि हाँ, आपां कहने मेरा दिमाग मेरी बुद्धि ये गल कह रही है, यानी कि जिहड़ा बुद्धि नूं अंदर कह रहा मेरी बुद्धि, वो कोई होर चेतना अंदर। जदों उहनूं खोजण वास्ते अंदर टुरीए ते फिर एक कोश आउंदा, उहनूं कहंदे ने आनंदमय कोश। उस आनंदमय कोश के नेड़े नेड़े असीं कई बारी फिरदे हां, कई बारी बाणी पढ़दे हां, असीं कहने बड़ा आनंद आया, कथा सुनदे हां, कीर्तन सुनदे हां, अज बड़ा आनंद आया, आया पर चला गया। उस आनंदमय कोश तक गए सी पर मुड़ के फिर बाहर आ गए। उस आनंदमय कोश तो परे है चेतना, जिसनूं कहंदे ने आत्मा, जिन्हों कहंदे ने सत। पंज पड़दे दूर कीते, पंज पड़दियां नूं दूर करके थल्ले फिर आत्म राम निराला है। संत जन इन्हां पंजां कोशां की साधना करदियां करदियां उस सत स्वरूप आत्मा विच जाके अभेद हो जाते। जदों उस सत स्वरूप आत्मा च जाके अभेद हुंदे फिर उन्हां नूं कहा जांदा संत। फिर उन्हां संतां नूं कहा संत ते राम विच कोई भेद नहीं, दोवें ही एक मिक ने। उत्थे पहुंच के सत की उस अवस्था विच पंजां कोशां तो परे उस आत्म तत्व विच पहुंच के महाराज भगत रविदास जी कह रहे ने, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, तेरे विच और मेरे विच और मेरे विच और तेरे च कोई भेद नहीं रहा। जिवें पानी ते पानी की तरंग च कोई भेद नहीं। उस अवस्था च पहुंच गए ते इहो जे महापुरुषां साधुआं ते संतां दी शोभा धन गुरु अर्जन देव साहब ने बहुत गाई गुरु ग्रंथ साहब विच। महाराज जी तां बार बार अपने शब्दां विच इहो जे संत जनां दे चरनां दी धूड़ी दा दान मुड़ मुड़ के मंगदे आ। नानक दास यह सुख मंगै, मोको कर संतन की धूरे। महाराज जी अपने संत जना दे चरना की धूड़ बना लो, मैं दान मंगदा। रेन पग साधा, साधुआं दे चरना की रेन धूड़ी मंगदा हाँ। धूड़ी मज्जन साध के साई थिए, किरपाल दान महंडा तली खाक। जे मिले तो मस्तक लाइए साधुआं दे चरना की धूड़ी, सतपुरुषां दे चरनां दी धूड़।
गुरबाणी विच पातशाह ने बार बार मंगी है। हाँ, ये गल जरूर है कि अक्सर संत जनां दी रीस करन वाले पखंडी संसार च बड़े पैदा हो जाते। उन्हां पखंडियां नूं वेख के आम करके लोग कहंदे जी संत इहो जे हुंदे। ना भाई, असल दी नकल जरूर हुंदी है, पर असल होवे तां नकल हुंदी है। ते ये हुण सानू परमेश्वर ने सुरत दित्ती है, सोझी दित्ती है भी असीं पछाण करिए भी नकल की है ते असल की है। अज कल कह दिंदे जी कोई संत नहीं हुंदा जी, कोई महात्मा नहीं हुंदा। अज दा समां ही इहो जिहा बन गया, स्टेजां जिहड़ियां कथा दीयां रह गईयां ने ना, ते साडे वर्गे जिहड़े बुलारे कई उन्हां दा काम ही है ज्यों भंडी करन लगणगे साधुआं दी, रब दे प्यारिआं दी। कहते कोई संत नहीं हुंदा, जिन्हां नूं नहीं मिलिया उन्हां वास्ते नहीं हुंदा, जिन्हां नूं मिले ने वो कहंदे हैण हैण ने पर विरले हन। जिन्हां नूं कोई नहीं मिलिया, जिहो जिहा कोई होवे उहनूं उहो जिहा अगों मिल जांदा। जिहो जिहा उड़दे नूं उड़दे मिल जांदे ने, तुरदे नूं तुरदे मिल पैंदे आ। इसे तरह जे किसी अपने अंदर जग्यासा भाव होवे उहनूं रब दे बख्शे हुए प्यारिआं दा मेला हो जांदा। जिन्हां नूं होया है वो अपने शरीर दे अंतले सवास तक उन्हां महापुरुषां दे मेले नूं अपने हिरदे च चितव के परम आनंद दे रंग च भर जांदे ने। मैनूं सरदार अमर सिंह जी दस रहे सन कि कहंदे जदों मेरी मिलनी हुई सी महापुरुषां नाल, संत बाबा ईश्वर सिंह जी नाल, वो बड़े वजब विच प्रेम च दस रहे सी बचन। जिन्हों कोई महात्मा दा संग होया होवे ना, वो अपनी सारी जिंदगी उस पहली संगत दे रंग नूं ही सारा जीवन महसूस करदा है और उसे रंग दी मस्ती विच अपने जीवन नूं बतीत कर दिंदा है। ऐसे महापुरुष संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वाले, जिन्हां दी जितनी शोभा कर लईए थोड़ी है। राजा योगी कह के महापुरुष उन्होंने संबोधन करया करते सन, जिन्हां ने अपना सारा जीवन निरंकार की बंदगी विच प्रचार प्रसार करदिआं बतीत कीता। मलवई धारना दे विच बड़ा सरल सुखैन जे ढंग नाल कथा कीर्तन करके संगत नूं गुरु पातशाह दे चरनां नाल जोड़दे रहे। जिहड़े आप जुड़े ने अगे जोड़दे हन। टुटिया होयां दा काम तोड़ना हुंदा, जुड़िया होयां दा काम जोड़ना हुंदा है। इहो जे प्यारिआं बाबत ही पातशाह ने कहा, कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजा प्राण अकोर। जुड़े हुए जोड़ते हैं, तो जोड़ना ही सब तो वड्डा पुन है। खालसा जी, असीं अजकल ये सारी जिम्मेवारी जिहड़ी है ना प्रचारकां नूं, रागियां ढाडियां नूं दे दित्ती भी तुहाडा काम है, तुसीं जोड़ो। तुसीं जिन्ने बैठे हो ना इत्थे, ते गुरु नानक साहब नूं मन्नण वाले पूरे संसार विच जिन्ने भी ने, हर एक दा फर्ज है, हर एक नूं सतगुरां ने अपने घर दा प्रचारक बनाया कि तुसीं गुरु नानक दे घर नाल सब नूं जोड़ना है, सतगुरां दे घर नाल जोड़ना। जोड़न दा बड़ा वड्डा पुन है। अपने जीवन विच तुसीं जे किते एक बंदे नूं भी सतगुरां दे नाल जोड़ दित्ता ना, गुरबाणी नाल, सतगुरां दे आशे नाल, खालसा जी उहदा बड़ा वड्डा पुन है। भाई गुरदास जी कहंदे जे किसी एक सिख नूं एक शब्द पढ़ना सिखा दिओ ना गुरबाणी दा, ते 100 मंदिर सोने दे बना के दान कर दिओ, जिन्ना फल प्राप्त हुंदा इन्ना फल किसी एक सिख नूं गुरबाणी दा शब्द सिखा के प्राप्त हो जाता। इस करके भाई अपनियां जिम्मेवारियां समझो। त्रासदी यह है कि धर्म परिवर्तन हो रहे ने, वो साडी अणगहली। असीं ये सारी जिम्मेवारी आख्या भी जां ये संस्थावां करन, जिहड़ियां संप्रदावां ने, केवल इन्हां दी नहीं, इन्हां दी भी जिम्मेवारी है, पर नाल हर एक सिख की जिम्मेवारी है कि भाई गुरु नानक साहब के मिशन के प्रचार ते प्रसार विच अपना योगदान पाइए। नगर नगर विच जाके जिहड़ा भी तुहानूं कोई प्रेमी जग्यासू मिलदा है, उहनूं सतगुरां दे घर विच जोड़ के लियाओ। महाराज जी की बाणी नाल, सतगुरां की कथा कीर्तन नाल जोड़न का यतन करो। इन्नियां बेनतियां समूह संगत ने प्रवान कर लैणियां। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी।
ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਆ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰੀਏ। ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿ, ਗਾਵ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹਿ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ, ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ